Namaskaram. Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers. So, this editorial is from The Hindu of 27th February. A leap backward for maternity entitlements. So, this gives a rough idea that in this article we will be discussing about maternity entitlements. What are maternity entitlements? Maternity means something related to motherhood. Entitled means something which is like supposed to have as required as per the right. अधिकार है आपका एंटाइटलमेंट, आपका वो अधिकार है मातृत्व का अधिकार. अ लीप बैकवर्ड मतलब हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैकवर्ड. So let's start this article and understand how to extract exam perspective से important and relevant points. Even as state after state is splurging on cash transfers for women, the most vulnerable among them, pregnant women, continue to be deprived of their legal right to maternity benefit. Okay, so what does it mean? So first तो you should be aware of splurging. क्या मतलब है इसका? स्प्लर्जिंग मतलब खर्च करना, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं. द स्टेट आफ्टर स्टेट, सरकारें जो हैं पैसा खर्च कर रही है ऑन कैश ट्रांसफर फॉर वुमन के लिए. So these days there is a like ample several schemes are being run which ensure that women are getting direct benefit transfer in terms of cash indirectly in their bank account. The most vulnerable among the women are pregnant women continue to be deprived of their legal right to maternity benefit. So it says ki though we are focusing on cash transfers for women, still pregnant women are actually getting deprived of the legal right to maternity benefit. दे रहे हैं लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट का जो अधिकार जो है जितने लोग प्रेग्नेंट वुमेन तक मिल पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है. वर्स उससे ही बुरा क्या है? वॉट एवर लिटिल यूज टू बी पेड टू देम सीम्स टू बी श्रिंकिंग. जो मिलता था वो भी घट रहा है. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस लाइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब बहुत स्टेटमेंट ठीक है, पैराग्राफ अच्छा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पैराग्राफ कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट, आप इसको ऐसा कह सकते हैं. द यूसेज ऑफ वर्ड वर्स मतलब उससे ही बुरा ये है. वॉट एवर लिटिल यूज टू बी पेड टू देम सीम्स टू बी श्रिंकिंग. ये क्लियर कट एक वर्डिक्ट दे रहे हैं साहब. क्लियर कट वर्डिक्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. नो डाउट whatever is being entitled to pregnant women as part of maternity benefit, no doubt there may be some challenges. I am not denying that. But that does not mean to be written like it is like seems to be shrinking or being deprived. We should not be giving a clear cut judgment. We need to tone it down, we need to balance it. Like we can say that though there are challenges, their good parts are also there. और गिवन द चैलेंजेस गवर्नमेंट नीड्स टू फिक्स देम. इस तरीके से यू नीड टू बैलेंस. ओके, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब यहाँ पे बात एनएफएसए की होगी. एनएफएसए 2023, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी कवर्ड इन द फॉर्मल सेक्टर, मतलब जो प्रॉपर से नौकरी पेशे में है उनको छोड़ करके सारी प्रेग्नेंट वुमेन को आर एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑफ 6,000 अ चाइल्ड. For every child 6,000 rupees. This is talking about something you can say government scheme, you can say NFSA. Very important topic for prelims as well as mains. You should be aware of its basic provisions. क्या इसके बेसिक प्रोविजंस हैं? मिनिस्ट्री, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो बेसिक प्रोविजन इज कि फॉर एवरी चाइल्ड 6,000 रुपीज ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इज गिवन. सो एट टूडेज प्राइसेस दिस वुड मीन, अगेन ये अजम्पशन है, इसको अवॉइड कीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट. यहां तक ये चीज इंपॉर्टेंट है. इवन दैट ऑफ कोर्स इज अ पिटेंस. अगेन दे आर गिविंग अ क्लियर कट जजमेंट कि पिटेंस है, कुछ वैल्यू नहीं है इसकी. वी कैन नॉट से लाइक दैट इन आवर एग्जाम. वी कैन से कि ओके दिस इज अ मीगर, वी नीड टू इम्प्रूव इट. वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि ये तो पिटेंस है, किसी यूज का नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, हम नहीं कह सकते ऐसे एग्जाम में. तो इस तरीके से टोन डाउन करने की जरूरत है.
Still, affirming the principle of universal maternity entitlements was a groundbreaking feature of the NFS. Very good. A groundbreaking feature था ऐसा. Even in relatively well-off households, pregnant women are often deprived of nutritious food, health care, or rest time. Maternity benefits can help them to look after themselves and the newborn child. Okay. This is kind of, you can say, very important. It highlights some issues faced by pregnant women. What are those issues? They don't get nutritious food, they have lack of health care, and they don't have proper time to rest. So these are the issues faced by women. Now, these maternity benefits in terms of 6,000 rupees per child can help them to look after themselves. भाई अगर किसी को दिक्कत है, परिवार से है और ढंग का खाने पीने को नहीं मिल रहा है, एंड द वुमन इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम में अगर उसको अगर 6,000 रुपया कुछ अमाउंट अगर हम देते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प हर फॉर श्योर. तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है. ठीक है, और एक इशू है. ये दोनों चीज अच्छी पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ब्यूटीफुली रिटन ओवर हियर एज वेल. Meager as they are, maternity benefits under the NFS are yet to be delivered. Now, yet to be delivered. अब अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट है ये, कि येट टू बी डिलीवर्ड, अभी तक डिलीवर हुआ ही नहीं. तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको अवॉइड करना है, हमेशा बैलेंस करके लिखना है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ डूइंग सो अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. इसको आपको पढ़ना है. What are the PMMY benefits? We will be looking back in a while. First of all, let's look at this sentence, these two sentences. Yet to be delivered, government is making a pretense. गवर्नमेंट एक बहाना बना रही है. बहाना बनाने मतलब दिखावा कर रही है. प्रिटेंस का मतलब टू दिखावा करना किसी चीज का. तो गवर्नमेंट एक दिखावा कर रही है. इस तरीके के स्टेटमेंट आपको नहीं लिखने हैं एग्जाम्स में. इस चीजों को अवॉइड करना है. दीज स्टेटमेंट्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज. आपको इसको बैलेंस करके लिखना है. आप लिखिए इस चीज को कि देयर आर चैलेंजेस विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. सिंपल, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है और बैलेंस करके लिखा हुआ है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर PMMY? So initially the benefits were restricted to one child a family, recently extended to a second child if it is a girl. बहुत अच्छा सा प्रोविजन है. प्रीलिम्स में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कीजिए और इसके ऊपर और भी कलेक्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए आप. This restriction is a blatant violation of the act. Now, this writer साहब जो हैं, he और and they are connecting PMMY with NFSA. परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, बट उस कनेक्शन के बेसिस पे ऐसे बोलना कि एक ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ द एक्ट है, ये थोड़ा सा जस्टिफाइबल नहीं है. तो इसको भी थोड़ा आपको टोन डाउन करना है, बैलेंस करके लिखना चाहिए. फर्दर द बेनिफिट्स हैव बीन आर्बिट्रली रिड्यूस टू 5,000 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड. अब राइटर साहब को लगता है कि जो 5,000 रुपया जो बेनिफिट दिया जा रहा है अंडर PMMY, वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रली रिड्यूस किया हुआ है. अब दिस इज द पर्सनल ओपिनियन, ये पर्सनल ओपिनियन है. ये इन लोगों को लगता है कि इट इज आर्बिट्रली रिड्यूस्ड. चांसेस है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने आर्बिट्रली रिड्यूस नहीं किया होगा इसका. देयर आर एम्पल चांसेस. तो ये पर्सनल ओपिनियन है. अब इस पर्सनल ओपिनियन को भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस कि हाउ टू लाइक रिमूव द पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम एन आर्टिकल. ठीक है. इवन दीज रिस्ट्रिक्टेड एंड रिड्यूस्ड बेनिफिट्स आर being denied to large numbers of entitled women. अगेन ये कह रहे हैं कि denied to a large number of entitled women. ठीक है, बात सही है, बहुत सारे लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, बट इतना कंफर्म वे में कहना कि बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा, ये सही तरीका नहीं है कहने का फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. दिस फेलियर इज वेल हिडन because the Ministry of Women and Child Development discloses very little information. Ministry seems to be aware of Section 4 of RTI, which calls for disclosure of basic information. Even the simplest of PMY statistics are not in the public domain. अब ये जो पूरा ओवरऑल चीज कही जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि there is a lack of information in the public domain. lack of info है in public domain. ये एक बहुत अच्छा इशू हो सकता है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता. इट इज एन एक्चुअली अ वेरी गुड इशू, बट इस इशू के ऊपर इतना ऐसे लिखने के बजाय हम इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में लिख सकते हैं
कि there needs to be proper information in the public domain for critical analysis of the implementation, effective implementation of the scheme। तो हमारी एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सेक्शन 4 की बात की जा रही है आरटीआई एक्ट, दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, बट फिर भी एक हमने एक कुछ दिन पहले भी हमने एक आरटीआई देखा था, आरटीआई पे एक आर्टिकल देखा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 4 यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि व्हाट डज सेक्शन 4 इज 4 स्पीक्स अबाउट, व्हाट डज सेक्शन 4 स्पीक अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात को हम सिंपल से कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, विच इज वन मोर इशू रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट रिलेटेड स्कीम्स। ये इशू भी आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। द मिनिस्ट्री हैव डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू आवर आरटीआई क्वेरीज ऑन पीएमवाई। अब मिनिस्ट्री ने इनके बातों का जवाब नहीं दिया, ठीक है, इनकी बातों का जवाब नहीं दिया, ये सब हमें नहीं लिखना है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव एस्टिमेटेड, अब इन्होंने एस्टिमेट लगाया है अपनी तरफ से। अगेन दिस इज इट इज काइंड वी हैव एस्टिमेटेड, अगेन अ पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, दी पीएमवाइज इफेक्टिव कवरेज डिफाइन द प्रोपोर्शन, ये सब कुछ इन्होंने खुद से करा। दिस इज अ ब्रॉड डेफिनेशन। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जस्ट 3000 एंड स्ट्रिक्ट कंडीशनलिटीज अप्लाई टू द सेकंड इंस्टॉलमेंट। दीज estimates are sobering, sobering का मतलब मेकिंग यू फील सीरियस। सोबरिंग मीन समथिंग विच मेक्स यू फील सीरियस। अब इन्होंने राइटर साहब लोगों ने क्या करा कि इनको आरटीआई का जवाब नहीं मिला, तो इन्होंने कुछ अपने बेसिस पे एस्टिमेट करा। एस्टिमेट लगाने के बेसिस पे दे आर कंक्लूडिंग दैट द एस्टिमेट्स आर क्वाइट सीरियस। हाउ दे आर सीरियस? दे आर सेइंग कि जो इफेक्टिव कवरेज है अनइम्प्रेसिव है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, और 23-24 में क्रैश टू जस्ट 9%, क्रैश्ड। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि जो कवरेज है वो कम हुआ होगा, सर्टेनली हुआ होगा, बट हमें एग्जाम में इस तरीके की चीज़ों को नहीं लिखना है। ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है कि जीन रीस साहब और ऋतिका, अकॉर्डिंग टू ऋतिका खेड़ा एंड जीन रीस, दिस एंड दिस फैक्ट, दिस मच ऑफ फैक्ट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन राइटर साहब के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिसर्च स्कॉलर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड नॉट फोकस ऑन दीज मेनी फैक्ट्स, you just simply keep in the mind that according to various estimates the coverage under the scheme is said to be alleged to be on a declining trend। सिंपल सा बात कह दीजिए, दिस विल अगेन बिकम एन इशू regarding maternity benefit schemes, that according to various estimates the coverage under the scheme is alleged to be on a declining trend। बात खत्म हो गई, यहाँ पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस अप्रोच हो गया इस चीज का। दिस क्रैश इज ऑल्सो विजिबल इन द बजट्स फिगर्स। अब इस क्रैश जो यहाँ पे कम हुआ है, इसको बजट फिगर से कंपेयर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो थी इस स्कीम पे ऑल टाइम लो था, 870 करोड़ रुपए इन 23-24 में, barely one third of the corresponding figure 5 years earlier, that too in money terms। Okay, to cover 90% of all births at just rupees 6,000 a birth, the PMI would require a total budget of at least, okay, यहाँ पे एक अच्छा है। Here is one more issue, like there are budgetary constraints, budgetary constraints। So what it is saying कि अगर ₹6,000 पर बर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो नियरली 12,000 करोड़ रुपीज विल बी रिक्वायर्ड, बट 2023-24 के बजट में ओनली 870 करोड़। अगेन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल अजम्पशन ऐसे लगा सकते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि देयर आर बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स, फंड्स की कमी है, फंड का क्रंच है, विच मे बी लीडिंग टू पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो इस तरीके से आपको एक और इशू मिल गया इस आर्टिकल से रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट्स। ओके, दी ऑफिशियल लाइन, वी डिस्कस दीज फिगर्स विद द ऑफिशियल। अब इन्होंने ऑफिशियल से डिस्कस करा, तो इनको ऑफिशियल ने क्या क्या कहा उसका पता चलेगा। दे डिड नॉट डिनाई, ऑफिशियल्स ने इनके अकॉर्डिंगली इन्हें कोई सरकारी अफसर मिल गए जिससे इन्होंने बात करी इन सब के बारे में। ऑफिशियल डिड नॉट डिनाई दैट द स्कीम केम टू ए वर्चुअल स्टैंड स्टिल इन 2023-24, रुक गया, बिल्कुल सा स्टैंड स्टिल में आ गया। दे ब्लेम्ड दिस ऑन मेजर चेंजेस इन सॉफ्टवेयर implementation processes, further scrutiny of data say the main problem was not reduction in application but a reduced disbursement rate, there were software problems every day। अब इन्होंने ऑफिशियल से क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, वो हमारे काम की चीज नहीं है। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट इज
कि देयर इज अ रिड्यूस्ड डिसबर्समेंट रेट। डिसबर्समेंट रेट क्यों है? Why? There may be disbursement rate may be low because of changes in software and implementation processes। तो ये जो है दो आपके और इश्यूज निकल गए रिगार्डिंग पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। पीएमएमओआई की बात की जा रही है। डिस्बर्समेंट रेट जो है वो घट गया है। एंड डिस्बर्समेंट का मतलब पैसा एक्चुअली देना, पैसे का ट्रांसफर करना, जो एंटाइटलमेंट है उनका, उस पैसे का ट्रांसफर करना वो रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस बहुत सारे कारण की वजह से हुआ होगा, उसके बारे में नीचे हम लोग देखेंगे क्या क्या कारण है। पर एक कारण तो बहुत बड़ा है कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती थी। तो एक तो इश्यू हो गया टेक्निकल। टेक्निकल में और भी कुछ हम नीचे देखेंगे। अभी एक तो इश्यू हो गया टेक्निकल, दूसरा इश्यू हो गया आपका डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। The problem, however, did not begin in it is इतना। The PMY launched in okay, one more important fact यहाँ पे आया। तो जब आप PMY जहाँ पे आपने नोट्स बनाया है वहाँ पे ऐड कर लीजिए कि this scheme was launched in 2017, has been plagued with complications all along। ठीक है, जब से लॉन्च हुआ है तब से इसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है PMY में। More than a few of them are related to आधार बेस्ड पेमेंट एंड डिजिटल tyranny। एक बहुत अच्छा सा टर्म यहाँ पे मिल रहा है आपको, डिजिटल टिरेनी। डिजिटल टिरेनी का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल और एक्सप्लॉइट। डिजिटल टिरेनी, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं या उसको परेशानी हो रही है। आपने टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना रिजिड कर दिया कि द बेनिफिशियरीज आर गेटिंग डिनाइड फ्रॉम देयर एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, तो आधार बेस्ड पेमेंट्स एंड डिजिटल टिरेनी। अब क्या है, आधार बेस्ड के अपने सिस्टम है। अब आधार जो है दैट इज इंटरनेट बेस्ड है। लोगों को फिंगरप्रिंट मैच होना चाहिए, बायोमेट्रिक मैच होना चाहिए, तो भी उनको उनके एंटाइटलमेंट्स मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप टेक्नोलॉजी वाले इशू में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स दैट हैव ड्रॉन अटेंशन टू दीज कॉम्प्लिकेशंस एंड एक्सक्लूजनरी इफेक्ट्स इंस्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राउंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन इस तरह की चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे रिपोर्ट हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सब जानकारी होने के बावजूद क्रिएटेड मोर कॉम्प्लिकेशंस। अब क्लियर कट एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड मोर कॉम्प्लिकेशंस। ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्लियर कट आपको गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना है। विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन वुमेन। इतने हाई, इतने क्रिटिकल लैंग्वेजेस आप अवॉइड कीजिए। डिजास्टर्स for the government, of course, the reduction in PMMY expenditure is a good deal. Could this could this be one reason why the tendency to create hurdles is so resilient? ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, खुद से उसका जवाब देंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा। अब इसमें पूरे में स्टेट लेवल पे दो स्टेट को पिक करके उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा और बताया जाएगा कि स्टेट्स ने कितने अच्छे से परफॉर्म करा है इस सेक्टर में। तो दो एग्जाम्पल दिया जा रहा है तमिलनाडु एंड उड़ीसा का। हैव शोन द पॉसिबिलिटी डिजाइनिंग अ सिंपल एंड इफेक्टिव मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स। ठीक है, 87 2009 से ऐसी स्कीम्स वो चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो मॉनेटरी सपोर्ट मतलब पैसे का जो सपोर्ट है, धनराशि का जो सपोर्ट है ऑफर्ड बाय देम इज मोर सब्सटेंशियल देन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो जो उड़ीसा में दे आर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज प्रोवाइडिंग 10,000 अ चाइल्ड एंड तमिलनाडु प्रोवाइडिंग 18,000 अ चाइल्ड। Obviously much more than the entitlement provided under Matru Vandana Yojana of central government. In Odisha, the amount was doubled ahead in this election. Again, not important. In Tamil Nadu, the DMK promised, government का नाम लिया जा रहा है, आप अवॉइड कर सकते हैं, promised to increase it to इतना in its 21 election manifesto, and the party appears to be waiting for the next election to implement। अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर पीएमएमवाई बेनिफिट्स फॉर देयर पार्ट हैव नेवर बीन रेज्ड डिस्पाइट बीइंग लोअर देन एनएफएसए नॉर्म्स इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट हो सकता है कि जो पीएमएमवाई के बेनिफिट्स हैं वो अभी तक कहीं बढ़ाया नहीं गया, जितना शुरू में था उतना ही आज भी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग से इसको करके इसको थोड़ा सा और अप टू डेट कर किया जा सकता है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की बात यहाँ पे कर सकते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। नीचे बताया भी है राइटर साहब ने।
तो ये जो पूरा ओवरऑल पैराग्राफ है, आपको इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं जाना है कि तमिलनाडु में कितना मिल रहा, उड़ीसा में कितना मिल रहा, उड़ीसा में इलेक्शन के पहले बढ़ा दिया गया, नहीं जाना है इनके पीछे। ओवरऑल आपको इतना मान के चलना है कि देयर आर सम स्टेट्स which are implementing similar schemes with better monetary benefits and with more effective implementation। तो इसका पूरे का इतना ही काम का है, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। Not only are the amounts higher in Odisha and Tamil Nadu, but their implementation is also much better। अच्छी बात है। Figures reported in economic survey suggest that maternity benefits covered 64%। In Tamil Nadu, coverage was इतना, when all India coverage and PMY was below 10%। ठीक है, इसको आप बता सकते हैं जो नहीं बताया कि इट इज अबाउट कवरेज ऑफ स्टेट स्कीम्स, कवरेज स्टेट वर्सेस सेंटर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं उनका कवरेज बहुत अच्छा, 64%, 84%। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसका कवरेज मात्र 10%। ठीक है, तो ये आपका एक अलग आप ऐड कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। तो एज ए कवरेज, और ऊपर हमने देखा जो बेनिफिट है मॉनेटरी टर्म्स में, ये दो इश्यूज आप कंपेयर कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि ये सारा इश्यूज हैं पीएमएमवाई वाई के। एक इशू है कि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो अभी तक बढ़ाए नहीं गए, वो एज इट इज जितना पहले था उतना आज भी है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा है कवरेज वाला इशू, पीएमएमवाई का जो कवरेज है दैट इज बिलो 10%। ठीक है, तो कवरेज भी बढ़ाने की जरूरत है। इन द फॉर्मल सेक्टर, इंडियन वुमेन एंजॉय अ फुल 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव कंपेयर्ड विद द, ओके, तो बता रहे हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में है 26 हफ्तों का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है। मतलब इफ अ वुमन इज गेटिंग प्रेग्नेंट एंड वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज काइंड ऑफ, या इवन टू सम एक्सटेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अगर वुमेन आर गेटिंग प्रेग्नेंट तो उन्हें 26 हफ्ते तक की छुट्टी मिल जाती है पेड लीव। मतलब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिए घर पे और हम सैलरी भी आपको देंगे। दिस इज कंपेयर्ड विद डब्ल्यू का जो नॉर्म है 14 वीक्स का है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज लाइक 14 हफ्ते का देना चाहिए, बट इंडिया में 26 मही हफ्ते का है, 26 वीक्स का, तो बहुत अच्छी बात है। बट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दे गेट अ फ्लैट 5,000 if they are lucky enough to survive all the hoops they have to jump through the PMI benefits। These double standards are mind boggling। माइंड बॉगलिंग का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया ये कैसे हो रहा है। फॉर्मल सेक्टर में जहाँ आप 26 हफ्ते तक कह रहे हो कि काम आप पे ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं, कि छुट्टी मनाओ और आपको सैलरी देंगे, और वहीं अगर कोई वुमेन जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है, जैसे ईंट भट्टे पे काम कर रही है या छोटा मोटा काम कर रही है, कहीं फॉर्मल सेक्टर नहीं है, मजदूरी पे काम कर रही है, उसके लिए 5,000 भी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे आप मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से बताया जा रहा है यहाँ पे। ये जो स्कीम्स हैं, स्कीम का जो बेनिफिट है वो देखिए कैसे चीज़ें चल रही है। बट अगेन अगर आप देखें तो पीएमएमवाई की जो बेनिफिट्स हैं, ये जो फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं वो एलिजिबल ही नहीं होते। हमने अभी फर्स्ट पर शुरुआत में ही देखा था, पीएमएमवाई का जो बेनिफिट है वो फॉर्मल सेक्टर के वुमेन के लिए है ही नहीं। तो उस केस में ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए ही है, जैसे गरीबों के लिए ही है, उन्हीं के लिए पीएमएमवाई का बेनिफिट अवेलेबल है। बट स्टिल द अमाउंट 5,000 and the amount 5,000 is very meager and the coverage is also very poor, which we just saw in the above sentences। The time has come to admit, समय आ गया है इस बात को मान लो कि पीएमएमवीवाई इज अ फ्लॉप शो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अवॉइड कीजिए, नहीं ज़रूरत है इतना बोलने का। हमें हमें हमेशा बोलना है कि देयर आर चैलेंजेस और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि फ्लॉप शो हो गया, खत्म हो गया, बंद करो इसको, नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सीम्स टू बी मोर कंसर्न विद सेविंग मनी देन विद हेल्पिंग प्रेग्नेंट वुमेन। Sweeping statements, too much critical of the intentions of central government, we should avoid। As a result, it has ruined a program। वर्डिक्ट दे रहे हैं कि भैया प्रोग्राम को बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया इन्होंने। दैट कुड हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल एंड पॉपुलर। इट ऑल्सो स्टैंड्स इन फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ एनएफएसए। द एंटायर प्रोग्राम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड इन लाइन विद द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द एक्ट। ठीक है, रिवैम्प करने की जरूरत है, पर इस तरीके से लिखना कि द एंटायर प्रोग्राम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, इसको आप थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं। आप सिंपली बोलिए कि फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो,
द प्रोग्राम नीड्स टू बी अपग्रेडेड, आप ऐसे बोल सकते हैं। द बेनिफिट शुड ऑल्सो बी रेज्ड एंड इंडेक्स टू द प्राइस लेवल, बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे। इन्फ्लेशन जो अभी जो आजकल इन्फ्लेशन चल रहा है उसके हिसाब से जो अमाउंट 5000 है उसको इंक्रीज करना चाहिए। 5000 जो है बहुत पुराना हो गया, उसकी आज के डेट में कुछ खास वर्थ है नहीं। द एंटायर सोसाइटी स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम बेटर पब्लिक सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये अपने आप में एक सेंटेंस लास्ट में दे दिया गया, बट इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो अपने आप में बहुत सारे डायमेंशंस निकल सकते हैं। अब इसे बताया जा रहा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा तो इट विल बी अल्टीमेटली बी बेनिफिटिंग द एंटायर सोसाइटी। तो अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब इसको आप अपने किसी पंच लाइन के रूप में किसी आंसर में यूज कर सकते हैं कि हाउ लाइक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो पूरी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो अच्छा सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी कुछ वे फॉरवर्ड दिए गए हैं, जो मैंने इंडेक्शन वाली बात बताई, इंडेक्सेशन वाली बात, तो वे फॉरवर्ड अच्छा दिया गया है। तो दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल, और हमने इसमें देखा क्या क्या देखा। पहले तो हमने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद हमने इसमें देखा कुछ इश्यूज बहुत सारे देखे हमने रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और जो इश्यूज हमने देखे दैट बेसिकली रिवॉल्व अराउंड बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, not enough amount to be dispersed, then also coverage, ज़्यादा अच्छा कवरेज नहीं है, ज़्यादा लोग ज़्यादा बेनिफिशियरीज नहीं है, बेनिफिट कवरेज ऑफ बेनिफिशियरीज इज नॉट दैट गुड। इस तरह के कुछ हमने इश्यूज देखे, कुछ वे फॉरवर्ड देखा, कुछ सजेशंस देखा कि लाइक हाउ टू लाइक मेक इट इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, कैसे प्राइस बढ़ाया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। दिस वॉज द ओवरऑल आर्टिकल। और सबसे अच्छी बात कि इस आर्टिकल में हमने देखा कि लाइक हाउ वी शुड नॉट बी टेकिंग समवन्स पर्सनल ओपिनियन, कंसिडरिंग द दैट पर्सनल ओपिनियन टू बी द कोर फैक्ट। ये हमें पकड़ में आना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी में इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है कि पर्सनल ओपिनियन अगर किसी का है तो उसको कैसे आप पकड़ लो कि भैया ये पर्सनल ओपिनियन है, वी शुड नॉट बी राइटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द आंसर। इसके अलावा टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अवॉइड करना है इन चीज़ों को। ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिकल हो गवर्नमेंट पॉलिसीज का, इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। हमेशा ऑलवेज ट्राई टू बी बैलेंस्ड इन योर स्टेटमेंट्स, ट्राई टू बी बैलेंस्ड and like kind of very much calm, should not be making sweeping statements. Okay, and I will be like giving a quick summary and one practice question and vocabulary and key points also of this article for your ready reference.